mirror formula. Okay, before starting that point, first we recall what is the sign conventions of mirrors. Sign convention, what is the new sign convention? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि that is a concave mirror. Suppose that is a concave mirror, that is the principal axis. If the object is placed in front of the mirror, always object is placed in front of the mirror, and some light coming from that object on the face of mirror in that direction. That means that is the direction of incident ray. Direction of incident ray. In the direction of incident ray, if you want to measure the distance of object as well as image in the direction of incident ray, then that distance we take as a positive, and in the opposite direction of incident ray we take this as a negative. Always distance always measured from the pole of mirror. Okay, so distance अगर आपको मेजर करना है तो पोल से ही मेजर करना होगा. अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, the object distance is what? In that case the object distance is negative, because पोल से हम मेजर करने वाले हैं from pole to that object, so that object distance is here negative. Why negative? Because the distance measured from pole to object is in opposite direction of incident ray. Incident ray के opposite direction में जो भी distance आप measure करोगे वो negative लेना पड़ेगा. You means what? Distance of object from the mirror. You means small u means what? Distance of object from the mirror. ठीक है? If your image is behind the mirror, अगर आपकी image behind the mirror form होती है, तो उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? फ्रॉम द पोल से मेजर करना है, मतलब पोल से स्टार्ट करना होगा टुवर्ड्स राइट. इट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. जैसे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव. v means the distance of image from the पोल से इमेज का डिस्टेंस स्मॉल v से डिनोट किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल स्मॉल u से डिनोट किया जाएगा. ठीक है? अगर आपका ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में अगर आपको देखना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज व्हाट? h1. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय h1. h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी हाइट हम पॉजिटिव लेने वाले हैं. अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द इमेज इज आल्सो, हाइट ऑफ इमेज इज आल्सो पॉजिटिव. h2 मींस हाइट ऑफ इमेज, h1 मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, अगर आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, that image form always below the principal axis. अगर वो below the principal axis बनती है तो उसकी जो इमेज की हाइट होगी वो आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी. मतलब above the principal axis all the heights are positive and below the principal axis all the heights are negative. है ना? The distance measured in the direction of incident ray is positive, and the distance measured opposite in the direction of incident ray it is negative. So that is the sign convention. ये हमने लास्ट क्लास में देखा है. अब हमें मिरर फॉर्मूला देखना है. व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? द फॉर्मूला व्हिच गिव्स सम रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ. इन तीनों का एक रिलेशनशिप है उस फॉर्मूला में. व्हाट इज द रिलेशनशिप? अगर आप देखोगे तो ये रिलेशनशिप है जनरली द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना?
distance of image is equal to what? Reciprocal of focal length. Reciprocal of focal length. Small f is called the focal length. You can write like this, focal length. Put the notations. इस चीज का उसके notations रख दो. 1 by distance of object means u. U means the distance of object plus 1 upon v is the distance of image is equal to 1 upon focal length. F, small f is the focal length. So that is nothing but the distance formula. That is nothing but the distance formula. U मतलब object का distance from the pole. V मतलब image का distance from the pole. And F is the focal length. Focal length is what? What is mean by focal length? The distance between pole and focus. Principal focus and pole के बीच में का जो distance होगा उसे हम focal length बोलेंगे. अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द ट्वाइस फोकल लेंथ, 2 into focal length. So that is all about the mirror formula. So after that, mirror formula, that formula is applicable for both the cases. In the case of concave mirror as well as in the case of convex mirror. दोनों केस में ये फॉर्मूला आपको एप्लीकेबल है. ठीक है. अब यहां पे सिर्फ चेंज क्या होगा? The sign of that distances. If that object is in the direction of incident ray, then we can take this as a positive. If object, the image is in the direction of incident ray, we can just take this as a positive. अगर ये opposite to the incident ray है तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो ये डिफरेंसेस है इसमें. ठीक है. अब एक चीज समझ लो, इसको मैं इरेज करूंगा. आपको हमेशा ये चीज याद रखनी होगी, अब कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, सपोज दैट इज अ कॉन्केव मिरर. ठीक है. दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज प्रिंसिपल फोकस एंड दैट इज अ पोल. दैट इज कॉन्केव मिरर. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका होगा तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे? कहां पे रखोगे? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मिरर के सामने रखना पड़ेगा ना. कहीं पे भी रखो. अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? टुवर्ड्स द फेस ऑफ मिरर, है ना. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा ऐसी ही होगी ना. ये मिरर का फेस है तो फेस पे जो लाइट आएगी दैट इज द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रेज. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? टुवर्ड्स द राइट इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर. इस केस में ये इस तरह से जाती है. तो ऑब्जेक्ट को भी आपको यहां पे रखना होगा. मतलब ऑब्जेक्ट से भी जो भी लाइट आएगी वो इन द सेम डिस्टेंस डायरेक्शन. अब आई वांट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इसका डिस्टेंस मुझे मेजर करना है फ्रॉम द पोल. मैं डिस्टेंस कहां से मेजर करूंगा? फ्रॉम द पोल. तो ये डिस्टेंस मुझे इन द अपोजिट डायरेक्शन मेजर करना होगा फ्रॉम द पोल P से लेकर दैट ऑब्जेक्ट तक. तो वो अपोजिट डायरेक्शन से आना ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब वी कैन टेक द डिस्टेंस इन नेगेटिव. नेगेटिव लेना पड़ेगा. अब ये ऑब्जेक्ट कहां पे भी रखो? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखना पड़ेगा तभी वो ऑब्जेक्ट इसमें दिखेगा. बराबर है ना. इसके पीछे अगर लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द मिरर तो क्या फायदा उसका? इस मिरर में दिखेगा ही नहीं, तो उसका स्टडी हम नहीं कर सकते. तो ऑब्जेक्ट को आपको इसके सामने रखना पड़ेगा. इसका मतलब ये नोट डाउन कर लो, ये रूल हुआ. व्हाट इज द रूल? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो हमेशा यहीं पे रहेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और कहीं पे भी रहने दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी अगर है तो डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा. फोकस पे है तो डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा. इन बिटवीन फोकस एंड पोल है तो डिस्टेंस फिर भी नेगेटिव रहेगा. कहीं भी इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो भी डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा. बिकॉज वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल टू दैट ऑब्जेक्ट. इट मींस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. सो दैट्स व्हाई वी टेक दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव.
ठीक है, अब इमेज के बारे में देखेंगे। ये तो हुआ ऑब्जेक्ट का, चलो इसको मिटाएंगे। अब ऑब्जेक्ट तो यही पे रहेगा, इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है? अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इन बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? बिहाइंड द मिरर। ये हमने देखा था, ये आपको पता भी है, बिहाइंड द मिरर यहाँ पे इमेज बनेगी। सो दैट इमेज इज व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है, इरेक्ट है, मतलब दैट इमेज फॉर्म्ड इमेज, दैट इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। Formation of that image above the principal axis, that is virtual, because that image formed in the behind the mirror. मिरर के पीछे बनती है, मिरर के अंदर बनती है, तो ये वर्चुअल होगी। अगर इसका डिस्टेंस मुझे मेजर करना है तो मुझे पोल से मेजर करना होगा, यहाँ से स्टार्ट करना होगा टुवर्ड्स द राइट, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द राइट। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मैं मेजर कर रहा हूँ डिस्टेंस को, तो ये क्या बनेगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। v पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे इन द केस ऑफ वर्चुअल मिरर। जो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी तब डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा उस इमेज का, क्योंकि इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनेगी? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल ही रहने वाली है, तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पोल से राइट की तरफ मुझे डिस्टेंस मेजर करना होगा। इसका मतलब एक रूल बना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मेरा फर्स्ट रूल क्या था? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव बनेगा। सेकंड रूल क्या बना? वर्चुअल अगर इमेज है, वर्चुअल इमेज अगर है तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर है उसका डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि पोल से इमेज तक का डिस्टेंस हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करने वाले हैं। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, नहीं तो यहाँ पे है, यहाँ फोकस में है, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनने वाली है? रियल बनेगी। रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। जो भी इमेज रियल बनेगी तो ये ऐसी बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, in front of the mirror, and the image is real and inverted. रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर वो इमेज रियल है तो वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, फ्रॉम पोल टू दैट इमेज। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज इज नेगेटिव होगा इन द केस ऑफ रियल इमेज। अगर इमेज रियल बनती है, रियल इमेज अगर बनती है तो उसका डिस्टेंस हमेशा, तो इससे आपको एक पता भी चल जाएगा कि नेगेटिव डिस्टेंस अगर आपको दिया तो मान लो वो इमेज रियल है। अगर पॉजिटिव डिस्टेंस दिया इमेज का तो मान लो वो इमेज वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो पता चल जाएगा साइन से कि इमेज, मतलब अगर ऐसी वैल्यू दी है, सॉरी v इज इक्वल टू -10 दिया है, -10 सेंटीमीटर है v इज इक्वल टू, that is v is what distance of image and it is a negative, it means ये इमेज कैसी है? रियल होगी। नेगेटिव डिस्टेंस है मतलब इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है। अगर आपको ऐसी वैल्यू दी +5 सेंटीमीटर, दैट इमेज इज वर्चुअल। अगर इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है। एमसीक्यू आएंगे इसमें। आपको इमेज की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू दी होगी और बोलेंगे कि ये व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट इमेज, बता सकते हैं आप। अगर पॉजिटिव है तो रियल वर्चुअल, अगर नेगेटिव है तो रियल बनेगी।